Hello, folks. Welcome to Vakilverse, where we talk about the resilience, growth, and success stories of first generation lawyers. So, today we have very special guest with us, Mr. Gautam Jaiswal, who started his legal journey without any family background. So, let's listen his aspiring story. Thank you, Ayush, for inviting me on the podcast. It's been a pleasure to be invited on such a podcast. आपको लॉ करने का आइडिया कहाँ से आया? I mean, जब आपके घर में कोई भी लॉयर नहीं था, तो what inspired you to do law? So, first of all, Ayush, indeed, I'm coming from a background of doctors, basically. अगर मैं अपना motivation बताऊं कि what made me to opt for law was that कि I always wanted to do something different. Like in my home, there is a tradition of becoming doctors, and actually, I wanted to break that tradition, the very tradition of becoming the doctor. So I was the only one who has just chose a black coat over white. And apart from this, the other motivation which I was having for becoming an advocate is that since I'm from Prayagraj, it is also known as the city of advocates, and the historic Allahabad High Court is situated here. So from the very beginning, I was very fascinated by this particular thing. And my father is having a lot of advocates friends. So one of my uncle, he's no more right now, Mr. Alok Johri. He is one of the criminal lawyer in Allahabad. So actually, the aura and the vibe which he was having, I was very fascinated by his very existence. So I think that is also one of the motivation which forced me to choose law as a career. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो लॉ है फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सनालिटी बेस्ड होता है, देखो पर्सनालिटी से ही आदमी करियर को चूज करता है. व्हाट आई पर्सनली परसीव इज दैट. सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई केस I was always having a personality of being little curious. I always loved to have a public dealing with the people and all, and always had an attitude of problem solving. So for my case, I was always inclined to pursue law. And one of the most humorous thing I must tell you, जैसे for example आयुष आपको आपने क्यों law choose किया था? If I may ask. The main reason to choose law is that I had very toxic relationship with maths. So to avoid maths, I chose law. That is very relatable, Ayush. अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो I somewhat had a very toxic relation with maths. So for me, maths was always toxic and law was always classic. स्टार्टिंग अ कैरियर इज नेवर इजी सर, लेकिन फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है. तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आयुष सबसे बड़ा चैलेंज बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर मैं कहूँगा, अगर जो कोई भी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर रहता है जो फेस करता है, दैट इज़ गाइडेंस और एक्सपोजर. क्योंकि अगर आपके घर में कोई एडवोकेट है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको एक नेचुरल गाइडेंस और एक्सपोजर मिलेगा. आपको पता चलेगा कि कोर्ट्स कैसे वर्क करता है, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है. बट फॉर द फर्स्ट जनरेशन दिस विल नॉट माइट बी द केस. तो यहाँ पे मेरा हमेशा एक ये एडवाइस रहता है टू द फर्स्ट जनरेशन लॉयर कि आप हमेशा एक मेंटोर अच्छा ढूंढो, बिकॉज it is only the seniors who can teach you very well कि कैसे, because they are the one whom you can rely for guidance and support, right? और मैं इससे कभी डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए कि मैं एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ तो मुझे उस तरीके का गाइडेंस और कभी एक्सपोजर नहीं मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर मैं आपको बताऊँ, इंडिया के वन ऑफ द जो टॉप एडवोकेट्स हैं, दे वर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर. फॉर इंस्टेंस मिस्टर जेठमलानी का नाम सुना होगा आयुष आपने, द आइकॉनिक क्रिमिनल लॉयर, isn't it? He has fought cases like Manu Sharma ka case and all. Then Mr. Soli Saurabh ji, Mr. Nani Palkiwala का आपने नाम सुना होगा. He is very famous for his arguments in केशवानंद भारती case. इंदिरा जयसिंह, अगर हम लोग थोड़ा फीमेल डोमेन में जाएं तो इंदिरा जयसिंह was also the first Solicitor General of India. तो these never had someone in their family as an advocate earlier, but they have worked hard to become the you can say the one of the top lawyers of the country. Even Mr. Harish Salve, आपने नाम सुना है Mr. Harish? Very famous advocate, and he has representative India in International Court of Justice in the case of Jadhav Kulbhushan, if I'm not Kulbhushan Jadhav case, as a spy in Pakistan, and regarding Geneva Conventions and all, he has fought on behalf of India. तो जैसे मैं कह रहा था आयुष कि कैसे हमारे कंट्री के बड़े बड़े एडवोकेट्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन थे. देखो शुरू शुरू में आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी
और हो सकता है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े, बट मैं बताता हूँ आपको कि इट विल स्टिल बी वेरी रिवॉर्डिंग। जैसे ही आप जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा अपना स्पेस बनाने में जहां आपको कोई नहीं जानता है, तो दैट विल बी हैविंग अ वेरी सेटिस्फैक्शन इफेक्ट ऑन यू। और मैं हमेशा कहता हूं कि बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, you are always having this thing, that is you can write your own story always. You can make your own identity without affiliating to anybody कि मेरे घर में ये एडवोकेट थे, मेरे फादर थे। So, आपने जैसे बोला बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपके पास कनेक्शंस कम होते हैं, एक्सपोजर कम होते हैं, तो आपने पहले इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसे मैनेज की? तो इसके पीछे आयुष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताऊंगा। देखो, फर्स्ट इंटर्नशिप ग्रो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज फर्स्ट इंटर्नशिप विल ऑलवेज वी हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू। तो अब जैसे अगर मैं फर्स्ट इंटर्नशिप की अपने बात करूं, फर्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने इनिशियल लेवल पे बहुत सारे ईमेल्स किए, बहुत सारे फर्म्स को, बहुत सारे एडवोकेट्स को रीच आउट करने का कोशिश किया थ्रू ईमेल, थ्रू ऑनलाइन। बट आई वॉज सम वॉट अनसक्सेसफुल एट द वेरी बिगनिंग। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट जस्ट गो टू देम डायरेक्टली, पर्सनली ट्राई टू अप्रोच देम। तो मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, आई वाज परसुइंग माय BBA LLB फ्रॉम देयर। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मलेश्वरम देयर. So there was a mall by the name of Mantri. It is one of the very famous mall of Bangalore. So on the way of the mall, when we used to go and we used to just roam there, I found a law firm there by the name of JP Associates. So it belongs to Mr. Jay Prakash. He is one of the very good advocates of Karnataka. He practiced in Karnataka High Court. तो मैं नर्वस था बिकॉज विदाउट एनी रेफरल, विदाउट एनी कनेक्शन, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू देम। सो मैं अगर स्टोरी बताऊं तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द फर्म. इट इज वन ऑफ द वेरी बिग फर्म्स इन मलेश्वरम. एंड इनिशियली सम वॉट आई डोंट नो हाउ, वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप जेन्युइनली ट्राई करते हो, तो इवन गॉड ऑल्सो ओपन्स डोर्स फॉर यू. तो सम वॉट जेपी सर, I will take you and your friend, but you have to go through an interview first. And Ayush, he asked me a very relevant question, and I would like to ask to you also. I really want to know, since you are a young lawyer, I want to know what answer you will give. I gave the right answer, but I'll ask you what was the question. So basically, sir asked me, life में successful होने के लिए what is important? I'll just give you two options: hard work or a positive attitude. If you ask me, I would say positive attitude is more important than hard work. Exactly, that is the same answer which I have given. इसका रीजन था क्योंकि लाइफ में हार्ड वर्क तो एवरीबडी डज, इजंट इट? बट जब लाइफ में यू आर हिट बाय फेलियर, ठीक है, जब आपके पास टफ टाइमिंग आती है, इट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड विच कीप्स यू गोइंग, इजंट इट? सो हर situation में positive attitude रखना is a very important thing, which I have learned from sir, and I still have conversation with sir. We are still connected to each other, and I think if he's watching the podcast, I would like to say thank you so much sir for guiding me at those times. So Ayush, this was the main thing. And how, अगर आपको इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही हैं, आप गूगल पे जाओ. आज के टाइम पे तो देयर इज गूगल, देयर इज लिंक्डइन. गो फॉर इट, फाइंड द फर्म्स एंड जस्ट डायरेक्टली अप्लाई, और इफ नॉट पॉसिबल गो पर्सनली. और बस इतना हमेशा लाइफ में याद रखना, दो यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, इफ योर एफर्ट्स आर जेन्युइन, यू विल नॉट गो without any internship. Definitely you will land up somewhere. A mentor can make huge difference. तो आपकी लाइफ में कोई मेंटोर था सर जिसने आपको गाइड किया, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी थे, बिना मेंटोर के तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता? सो आयुष, मेरे लाइफ में, मेरे जर्नी में, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मेंटोर नहीं, बहुत सारे मेंटोर्स थे. तो अगर मैं बताऊं अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में, सो आई वाज ऑलवेज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ लॉट ऑफ मेंटोर्स. जब मैं कॉलेज में था, सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वेरियस प्रोफेसर्स ऑफ माइंड. मुझे अभी भी याद है, मिस्टर हनुमान sir was teaching us IPC. I still remember the class which he has taken on culpable homicide and murder. So it was very intriguing, and sir always used to entertain us after the class regarding our doubts. So mentors मैं कहूँगा बहुत सारे मेरे थे. Apart from the college professors, I had also done my internship under MC Mehta sir. Yes, so I think तुम जानते होगे मिस्टर MC मेहता को.
PIL, especially relating to environmental cases. So always I was having a very fortunate interaction with MC Mehta sir regarding the PILs, and he told me how the PILs and how the environmental jurisprudence actually came into force after the PILs. और साथ ही साथ देयर वॉज वन मोर मेंटोर, आई ट्रूली गिव माई ग्रैटिट्यूड दैट इफ ही इज वॉचिंग द पॉडकास्ट राइट अवे, मिस्टर गिरीश कुमार. Sir is a very good criminal lawyer based in Bangalore. So sir used to guide me regarding bail petitions. So मैं ये कहूँगा कि I was very fortunate. I was having a very good professors, good advocates who was promoting me into this field. So mentor, yes, definitely mentors plays a very important role, Ayush. What I personally feel. फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, बट आपके कई पीयर्स, आपके बैचमेट्स वेल स्टैब्लिश्ड लीगल फैमिली से आते हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि उनके कंपैरिजन में आपको कुछ डिसएडवांटेज है? क्यों नहीं, बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई आप मेरे में जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सेकंड नहीं थर्ड जनरेशन एडवोकेट्स हैं, तो बहुत बार लगता है कि वो लोग अपर एडवांटेज में, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं अपने से कंपेयर करूं. मगर मैंने जैसे बोला कि कोई निराशा होने वाली बात नहीं है. मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ आयुष, अगर तुम सुनना चाहो. आई वुड लाइक टू रिलेट दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स टू दैट पर्टिकुलर स्टोरी. अब देखो, तुम ऐसे समझो कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो थर्ड जनरेशन लॉयर है, मेरे जानने में मैं आपको बता रहा हूँ, जो थर्ड जनरेशन लॉयर हैं या जजेस के बेटे हैं या फिर उनके बच्चे हैं, बहुत बार ये होता है कि वो भले दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, बट दे आर नॉट एबल टू डू अ वेरी गुड प्रैक्टिस. अभी तक मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं जमा पाए, ऐसा होता है. और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एडवोकेसी में आपको मेरिट के साथ आपको आर्ट ऑफ एडवोकेसी भी आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड एक फैक्टर हो सकता है आपको प्रैक्टिस को आसान बनाने में, लेकिन साथ ही साथ जो आपका आर्ट ऑफ एडवोकेसी है वो हर इंसान को आनी चाहिए, अनटिल अनलेस आप नहीं कर पाओगे. अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से आयुष. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पीपल आर इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन ट्रैकिंग समझते हो आयुष? आई होप सो. कहीं तो आई थिंक तुम भी ट्रैकिंग करना पसंद करते हो कि नहीं? कहाँ रिसेंटली गए थे? रिसेंट ट्रैक तुंगनाथ, द हाईएस्ट शिव टेम्पल आई थिंक, चोपटा में ना, उत्तराखंड. So that is on the very, I think 14 or 1300 feet, I think feet, 13,000 feet, my bad. तो अब ये बताओ आयुष, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम समझो कि एक पहाड़ है, ठीक है, और उस पहाड़ की चोटी है, ठीक है. बीइंग अ ट्रैकर, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ माउंटेनियर, आपको क्या करना है? उस चोटी पे चढ़ना है, ठीक है. अब तुम यहाँ पे ऐसे समझो, एक हाइपोथेसिस तुम्हें बताता हूँ कि जो जैसे मान लो कि जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन लॉयर है, तुम ऐसे समझ लो उसे भी जाना है उस चोटी तक, जो फर्स्ट जनरेशन है उसे भी जाना है उस चोटी तक. डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा कि जो सेकंड और थर्ड जनरेशन एडवोकेट्स हैं उनके पास तुम समझो बेटर गियर और होंगे, उनके पास शूज़ अच्छे हो सकते हैं, उनके पास ट्रैकिंग पोल हो सकता है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड फर्स्ट जनरेशन के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है. लेकिन मुझे ये बताओ, क्या चोटी अपने आप नीचे आएगी? जाना तो खुद चढ़ के पड़ेगा, ठीक है. ट्रैकिंग पोल से और शूज़ से आपको एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन आपको पहुंचना तो खुद से पड़ेगा. तो सिमिलरली एडवोकेसी में भी बैकग्राउंड से आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन फाइनली आपको प्रूफ खुद से ही करना पड़ेगा. इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि सेकेंड जनरेशन एडवोकेट है मगर स्टिल प्रैक्टिस नहीं अच्छी हो पा रही है, बिकॉज इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव, आपके स्किल सेट पे बेस करता है. तो आई होप सो तुम समझ पाए होगे स्टोरी के माध्यम से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जो क्वेश्चन तुम्हारा है, आई वॉज रिसेंटली आस्क्ड दिस क्वेश्चन बाय वन ऑफ अ यंग लॉयर कि सर हम लोग थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, वी फील स्केरी व्हेन इट कम्स टू मूट कोर्ट और व्हेन इट कम्स टू बी प्रेजेंटिंग आवर केस इन फ्रंट ऑफ जज. तो बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने लॉ परस्यू तो कर रहे हैं, दे आर लिटिल इंट्रोवर्ट, उनको अभी इतना आइडिया नहीं है या फिर अभी तक पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया है उन्होंने, बट दे फील स्केरी. तो देयर क्वेश्चन इज, क्या कैन दे प्रैक्टिस और कैन दे प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अ जज और इन फ्रंट ऑफ अ मूट कोर्ट? माई आंसर इज ऑलवेज येस. देखो, द आर्ट ऑफ एडवोकेसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग. मैं आपको बताऊं तो पब्लिक स्पीकिंग में आयुष ये होता है कि जहां पे आप एक बार में बहुत सारे लोगों को एड्रेस करते हो, isn't it? जैसे फॉर इंस्टेंस मैं जब क्लास लेता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो आई एम एड्रेसिंग मोस्ट ऑफ, आई थिंक अराउंड 100 स्टूडेंट्स एट अ टाइम.
बट कोर्ट में आपको पता होना चाहिए इन द आर्ट ऑफ एडवोकेसी देयर इज ओनली कौन कौन से पार्टीज होते हैं आयुष, तुम्हें क्या लगता है? जज हो गए, तुम्हारे आपके विटनेसेस हो गए, आपके क्लाइंट हो गए, आपका ऑपोजिट काउंसिल हो गया। तो यू हैव टू कन्विंस द जज एंड द देयर इज ऑपोजिट काउंसिल। तो आपको सबके सामने पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी है, यू जस्ट नीड टू रिप्रेजेंट योर केस इन फ्रंट ऑफ दीज 3 to 4 पीपल। तो इट माइट बी स्केरी बट you can do it. Any introvert person can do it. I will always say any person can do this particular thing. It is not relating to something of public speaking. So if you are introvert also, please go for it. सो मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो ये सेशन के एंड में बस लास्ट ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि मैं ऐसी कौन कौन सी स्किल एक्वायर करूँ जो कि मेरे को बहुत आगे जाके आएगी। एग्जैक्टली तुम कहना चाह रहे हो कि ऐसा कौन सा स्किल सेट होना चाहिए एक आपको सक्सेसफुल फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि आयुष, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी तो तुम ऑटोमेटिकली नेटवर्क बनाओगे। जब नेटवर्क बनाओगे ऑब्वियसली यू विल बी गोइंग फॉर ड्राफ्टिंग एज वेल। तो मेरे हिसाब से जो 2 एसेंशियल स्किल है, एक है गुड ड्राफ्टिंग, क्योंकि ड्राफ्टिंग इज द नीड ऑफ द आवर। तो ड्राफ्टिंग होनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या एसेंशियल्स हम अपने आप में इनकलकेट कर सकते हैं, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी टिप दिया था, मैं तुमसे वो शेयर करना चाहता हूँ आयुष, क्योंकि सिंस यू आर ऑल्सो अ बडिंग लॉयर। देखो, उन्होंने हमेशा ये बात मुझे बताई कि मान लो आपका अगर कोई मित्र है या आप किसी सीनियर के अंडर हो, जैसे मान लो आयुष तुम किसी सीनियर के अंडर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आप फाइल रीड करते हो। हमेशा जब भी कोई केस अपने सीनियर का या अपने कोलीग का आप पढ़ते हो तो अपने आप को उसकी जगह रख के देखो। समझ रहे हो कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। साथ ही साथ ये भी सोचो कि जो मेरा ऑपोजिट पार्टी है वो क्या आर्गुमेंट्स दे सकता है और मुझसे जज क्या सवाल पूछ सकता है। समझ रहे हो? तो जब तुम अपने आप को उस जगह पे रखोगे ना, तो तुम तीनों डायरेक्शन से सोचोगे कि क्या आउटकम हो सकता है इस केस का, और तुम तीनों वे में तैयार रहोगे। और यही चीज, और जब तुम्हारा सीनियर जब आपके जाए कोर्ट में आर्ग्यू करने, तो वहां खड़े होके देखो हियरिंग और सोचो कि मैंने जो सोचा था क्वेश्चन, क्या ये वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सामने वाली पार्टी वही क्वेश्चन पूछ रही है। और जिस दिन इसका डिफरेंस कम हो, मतलब जो तुमने सोचा वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और जब तुम्हारा डिफरेंस कम होता जाए तो समझो यू आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन। यू आर थिंकिंग लाइक द जज और लाइक द ऑपोजिट पार्टी और लाइक योर सीनियर। So this will make you a very good advocate. Always try to substitute things. So Ayush, I would like to call your friends on the stage, since they have worked so hard day and night to make this session a wonderful session. So I would like to call them. Guys, please come on the stage. I want everybody to know who is working day and night to make this particular session a wonderful session. Thank you so much. Thank you.